Hi everyone. So my dear students of class ninth, I welcome you to the another very interesting session of digestion in humans, right? And definitely you so far you were just eating, not realizing that your internal machinery works really hard to what you eat. But this is so interesting, children, to know actually that what is happening inside our body, right? So yesterday I told you about like how the digestion begins from mouth to then the food reaches into the esophagus, then stomach and intestine. I also told you that the digestion gets completed in the what? See, we have got lot many pictures, interesting pictures to know, and this one I really found very nice. So here it is for you. And this is our coiled small intestine and surrounded by the large intestine. ठीक है. Now what has happened? The food is completely digested inside the small intestine. नाम स्मॉल है बट इसकी लेंथ हमारी लार्ज इंटेस्टाइन से बहुत ज़्यादा लंबी होती है. ठीक है. अब देखिए अब क्या होगा. द फूड इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्ट, लेकिन डाइजेस्ट होके न्यूट्रिएंट्स तो बन गए हैं, बट हाउ इज़ बॉडी गोइंग टू एब्जॉर्ब देम. So nature has created another very smart mechanism, and that mechanism is known as villi. Vilus is the singular and villi is the plural. So if we cut open one section of the small intestine, we will get numerous finger-like projections. You can see the other diagrams. This is also villi and this is also villi. These are the different diagrams of the villi. So let us focus here. This is giving us a complete understanding that this is a villi, and if we open this area we'll find finger like projections, right? ये देखिए बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं. लेट जूम इट मोर. एंड चिल्ड्रन, आपको मैं एक इसकी एनालॉजी दे रही हूँ. आई एम कंपेयरिंग इट विद द टावल, है ना. दो तरीके की टावल होती हैं. एक टावल वो होती है जो कि प्योर कॉटन टावल्स होती हैं, ठीक है. और एक टावल वो होती है जिसपे बहुत रोएदार टावल होती है. तो ऑब्वियसली आप को बॉडी वाइप करने के लिए जो ज़्यादा रोएदार टावल होती है उसकी एब्जॉर्प्शन पावर ज़्यादा होती है ना. भाई आपकी कॉटन टावल पूरी भीग जाती है, वेर एज रोए वाली टावल जो एंड इट टेक्स टाइम टू एक्चुअली ड्राई अप योर बॉडी. ऑन दी अदर हैंड जो रोएदार तौलिया होती है वो जल्दी से उसकी एब्जॉर्प्शन पावर ज़्यादा होती है और आपकी बॉडी को जल्दी ड्राई करती है ना. क्योंकि रोए होते हैं. रोए भी आपको ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस लग रहे हैं, है ना. वी कैन इमेजिन इट लाइक दैट. The same thing is happening, is present inside the body also. Inside the small intestine, these finger-like projections are there, which are actually richly supplied with the blood vessels. They are richly supplied with the blood vessels. So when this digested food come in between these finger-like projections, what is happening? By diffusion. आपको क्लास नाइन्थ में you have studied about diffusion, and by the diffusion the food is absorbed by these villi into the blood, and from the blood, along with the blood, it is sent to all the parts of the body. So this is how the villi helps to increase the surface area for the absorption of digested food. Is that clear to everyone? है ना. These villi, these are the villi. This is a part of small intestine. You can see it here. ये हमारी small intestine का एक हिस्सा है. These villi are richly supplied with blood vessels and they absorb the nutrients, and along with the blood these nutrients are supplied to the whole body. What is the usage of these nutrients? Bhai, these nutrients are used
to get you energy. These nutrients are used to repair your damaged cells, and these nutrients are also used to prepare new cells, to synthesize, create new cells for your body, right? So this is the role of villi in our body. Now what happens after that? सी यहाँ पर फूड का एब्जॉर्प्शन हो गया. नाउ दिस अनएब्जॉर्ब फूड, आप यहाँ पर देखिए, एक हमारे बॉडी में अपेंडिक्स करके भी एक हिस्सा दिख रहा है लार्ज इंटेस्टाइन के पास में. एक्चुअली इट इज़ सेड दैट वी हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी मंकीज़ और एप्स, है ना. तो हम लोग की क्योंकि हम आर्बोरियल लाइफ तो जीते नहीं हैं, हम पेड़ों पे तो रहते नहीं हैं, इसलिए हमारी बॉडी में पूंछ का काम, जो टेल का वर्क था, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया. और टेल जो है वो हमारी अब एक वेस्टिजियल ऑर्गन या अवशेषी अंग बनकर रह गई. ठीक है. अब ये जो वेस्टिजियल ऑर्गन या अवशेषी अंग हमारी बॉडी में रह गया, वो कहीं ना कहीं थोड़ा तो दिखेगा. भाई उसकी यूजेज नहीं थी तो वो छोटा होता गया एंड नाउ इट रिमेन्स इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ अपेंडिक्स. तो बहुत सारे लोगों को अपेंडिक्स कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उसको ऑपरेट करके बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, बिकॉज अपेंडिक्स हैज़ नो यूज़ इन आवर बॉडी. तो आपको एक बात समझ में आ गई कि अपेंडिक्स इज एक्चुअली योर, once upon a time it was the tail. So we still have a tail in our body, although it is in a very reduced form, and we call it appendix, right? So this is something very interesting. And now what happens to the food? Now the food, look at here, the food has reached into from small intestine to large intestine. Now children, नाम के हिसाब से इनके काम और साइजेस ऑपोजिट हैं. लार्ज इंटेस्टाइन इज हार्डली 1 to 1.5 मीटर लॉन्ग, एंड इट एब्जॉर्ब्स और इट रिसीव्स द अनएब्जॉर्ब्ड और अनडाइजेस्टेड फूड. नाउ दिस फूड स्टिल हैज़ some water into it, right? And you know it that 70% of our body is made up of water. So definitely we need water. और बॉडी का मैकेनिज्म आप देखिए, लुक एट द ब्यूटिफुल डिसिप्लिन एंड द सिस्टम दे हैव, दैट दे डू नॉट अलाउ अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर टू बी वेस्टेड. नाउ दिस फूड डेफिनेटली कंटेन्स water. So when the food reaches into the small intestine, whatever excess water the excreta or the waste material or the unabsorbed food has, that excess water is absorbed back by the body via the villi present in the large intestine, है ना. तो इसका मतलब है कि विलाई जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी है. स्मॉल इंटेस्टाइन में उनका क्या फंक्शन है? दे जस्ट एब्जॉर्ब ऑल द न्यूट्रिएंट्स, राइट, फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड. whereas in the large intestine the villi absorb all the excess water. I'm sure it is clear to you. अच्छा चलिए, अब excess water absorb हो गया. Now what is left is the waste matter which is harmful for the body. So ये लार्ज इंटेस्टाइन के इस हिस्से में कोलन जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर आया, यहाँ पे रेक्टम हुआ, and this is the anus. Anus also has sphincter muscles. Put some pressure on your brain and just think about it, that where else in the digestive tract or in the alimentary canal you will find the sphincter muscles. ज़रूर सोचिए, मुझे कमेंट में उसका आंसर दीजिएगा कि इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल देर आर 2 places वेयर वी फाइंड द स्फिंक्टर मसल्स. मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी है. सो एनस हैज़ ऑल्सो स्फिंक्टर मसल्स. और ये जो वेस्ट है, जो सॉलिड और सेमी सॉलिड वेस्ट है, जिसको हम एक्सक्रीटा या फीकल मैटर कहते हैं, ये हमारी बॉडी से फ्रॉम टाइम टू टाइम स्फिंक्टर मसल्स की हेल्प से एनस से
इजेस्ट कर दिया जाता है या रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। सो नाउ द डाइजेशन इज कंप्लीटेड, है ना। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इजेक्ट कर गया, है ना, एग्जिट कर गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ इजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस एंड दिस इज हाउ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द ह्यूमंस। ये पूरा का पूरा है, आप इस पे नोट्स जरूर से बना लीजिए। नाउ चिल्ड्रन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग एनी सब्जेक्ट? सी, the importance of studying any subject is that you can utilize the knowledge and information in your day-to-day life, है ना। Now many of you might have suffered, or people in your family might have suffered from the dental caries या दांतों में सड़न, है ना, दांतों में कीड़े पड़ना जिसको बोलते हैं। तो भाई कीड़े ऐसे दिखते नहीं हैं, है ना, वो क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट। नाउ व्हाट हैपन्स, आपने मीठा खाया, खाना खाया और आप ऐसे ही सो गए, आपने ना ही माउथ रिंस किया, ना ही आपने ब्रश किया, यू जस्ट वेंट टू द बेड। नाउ व्हाट हैपन्स, द फूड इज देयर स्टिकिंग टू योर टीथ, there are bacteria also into your teeth, and these bacteria will start decomposing the food particles sticking to your teeth. जब बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करेगा तो क्या होगा, एसिड निकलेगा, है ना। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि एसिड की कोरोसिव हैबिट होती है ना। वो किसी भी सरफेस को जला देता है, वो किसी भी सरफेस को डैमेज कर देता है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इनामल, जो हमारे टूथ हैं, जो हमारे टीथ हैं, उसकी सबसे ऊपर की कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट इनामल, राइट, ठीक है ना। इनामल को भी कोई चीज़ अगर डैमेज कर सकती है तो वो है ये बैक्टीरियल एसिड, ओके। Now what happens, let me tell you. Look at this picture. This is a healthy tooth. Now here the bacteria, ये बच्चा जो था ये रात में ब्रश करके नहीं सोता था, ठीक है। सो डेंटल कैरीज की शुरुआत हो गई, एसिड हैज स्टार्टेड डैमेजिंग द इनामल एंड इवेंचुअली नेक्स्ट पिक्चर में आप देखिए दैट द कैविटी, डेंटल कैविटी और डीप कैरीज आर फॉर्म्ड। जब ये कैरीज डीप होते होते हमारे यहाँ तक पहुँचते हैं, ओहो, इट गिव्स यू अक्यूट पेन। बहुत सारे लोगों ने सफ़र किया होगा, है ना। और स्वेलिंग हो जाती है, दांत में बहुत दर्द होता है। फिर डॉक्टर इवेंचुअली जब बहुत ज़्यादा डेंटल कैरीज सीरियस हो जाती हैं तो उसको वो आपके दे रिमूव और एक्सट्रैक्ट योर टूथ, अगेन वेरी पेनफुल प्रोसेस। तो और क्या होता है कि आपने अगर ब्रश कर लिया, सारा का सारा जो फूड पार्टिकल्स थे यू हैव रिमूव्ड फ्रॉम योर माउथ एंड देन यू कैन प्रोटेक्ट योर टीथ। Otherwise, you will suffer from dental caries, swelling of your cheek, swelling of the gums, lot of pain and eventually the removal. Again, mouth में जब injection लगते हैं भाई, I am a sufferer and that is why I am telling you all that you should take very good care of your teeth. Now I have started taking good care. So definitely when we do not take good care of our teeth, it does damage. दूसरी चीज़ और क्या होती है, जो बैक्टीरिया है वो जो व्हाट इज़ प्लाक, है ना, व्हाट इज़ डेंटल प्लाक। ये बैक्टीरिया रिमेनिंग फूड पार्टिकल्स के साथ में आपके दांतों के ऊपर में एक कवरिंग बनाने लगता है, दिस इज़ डेंटल प्लाक, ठीक है। अब जो हमारा सलाइवा होता है वो अल्कलाइन इन नेचर होता है, ठीक है। सो जो बैक्टीरिया एसिड सिक्रीट कर रहा है वहाँ तक हमारा सलाइवा पहुँच ही नहीं पा रहा है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर में प्लाक की कवरिंग है, इट इज़ प्रोटेक्टिंग, है ना। तो दीज आर पार्टनर्स इन क्राइम,
एक तो बैक्टीरिया का एसिड हमारी डेंटल कैरीज कॉज कर रहा है, और दूसरा काम जो प्लाक हो रहा है वो सलाइवा को वहाँ तक पहुँचने नहीं दे रहा है। तो भाई इसका एक ही सॉल्यूशन है, दैट बिफोर गोइंग टू बेड यू शुड ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज ब्रश योर टीथ, अदरवाइज हम लोग को ऐसी ही कंडीशन हो जाएगी और हम लोग बहुत ज़्यादा फिर सफ़र करने लगेंगे, है ना। तो वी डू नॉट वांट टू सफ़र, ऑब्वियसली नोबडी वांट्स टू सफ़र, नोबडी वांट्स टू हैव पेन, है ना। So, look at this. We do not want this to happen, and then definitely we should brush our teeth. So this is all about dental caries. आपको एक चीज़ और बता दूँ, जितना भी आपने ये पढ़ा भी होगा, because you are in class 9th now, and you must have studied about the neutralization reaction, that acid neutralizes the base or base neutralizes the acid. आपको ये भी पता होगा कि जितने भी सोप या क्लेंजिंग एजेंट्स होते हैं, दे आर बेसिकली बेसिक इन नेचर और एल्कलाइन इन नेचर। तो आपका जो टूथपेस्ट होता है ना, वो भी बेटा बेसिक इन नेचर होता है। तो व्हेन वी ब्रश आवर टीथ, द बेस इन आर और द alkali or the base in our toothpaste actually neutralizes the acid secreted by the bacteria, and that is how it helps in protecting our teeth, right? So children, this is all about the digestion in the humans and heterotrophic nutrition. Now there are certain in-text questions given in your book. I want you to kindly do all these questions in your copy, and if there is any doubt you will always ask me, right? Thank you very much, and on my next lecture we will begin with the respiration in humans. But before that children, your written work should be complete. If you are regular with your written work, you won't have to work extra. All right. Thank you very much. Happy learning. Take care.